Dr. Jagdeep Ji is a freelancer speaker and director in Gagan Jagdeep Private Limited. He did his master degree from Annamalai University and PhD from ISP of IUA London. He has 35 years of professional experience in central state governments of Punjab, Haryana, and Himachal Pradesh. He worked with Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, for more than 10 years. In 2003, he started his private sector job and worked for prestigious education groups of Punjab like CGC Ranjha, Vyad Vihara Group, IIT Badal Technical Campus, Shias Group, and Badi Infrastructure as principal director. His last tenure was with IIT Roper as Chief Operating Officer with their technology business incubator for 3.5 years. He also joined City University as Director Research, Industry Entrepreneurs and Innovation in July 2021. Sir is also co-chairman of the Educational Committee of PhD CCI, convener of IPFC, Steering Committee of PhD CCI, executive member of the FICCI's North India Education Committee, charter member of PIA Chandigarh chapter, coordinator of Institutional Innovation Council IIT Ropar, member of IIC for Tech Chandigarh and Punjabi University Patiala. Dr. Sharma is Industry Connect coordinator of City University for CII, FICCI, PhD Chamber of Commerce, and Industry PIA Chandigarh and Nikam Punjab chapter. There are so many things. We are fortunate enough that you are here with us, and I would like to invite you to formally with our students. And students are requested to please ask the questions as many as you can ask from the sir and get the maximum benefit. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Cutting short this introduction. A very good morning to all of you. First of all, I'm thankful to the IC College management for inviting me to this prestigious institute, and I have a very special affection for this institute. मेरा खुद बड़ा दिल करता है बार-बार यहाँ आने को. आज मेरा बेटा भी मेरे साथ आया है. Hopefully, if you get admission into this prestigious college, तो अगली बार इन चेयर्स पे वो भी बैठा होगा जैसे आज बैठा. इसका भी एक सपना है कि मैं इस कॉलेज में जो है वो एडमिशन लूँ, बट अनफॉर्चुनेटली 95% नंबर लेके भी कॉमर्स में जो है वो नहीं ये कर पाया, और एक्सपेक्टिंग कि उसको वो मिल जाएगी. सो इसकी इच्छा थी, मैंने कहा चलो आज इनको अपने साथ लेके चलते हैं. How was the last session? ऐसे ईमानदारी, जो लोग ईमानदार हैं हाथ खड़े करो. अच्छा, बेईमान भी हैं. देखो, मैं हंसाऊंगा अपने सेशन में, पूरा एंटरटेन रखूंगा, पूरा आपको चुटकुले भी सुनाऊंगा. हालांकि आज मैं ऑलमोस्ट 8-9 दिन बाद जो है वो मतलब कि वर्क पे वापस आया हूँ. आई वाज सफरिंग विद वायरल, और अभी भी मेरा गला जो है वो आप समझ सकते होंगे थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है. बट माय सेशन विल बी टोटली एंटरटेनिंग. टॉपिक पे तो हम बात करेंगे, आपकी लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे, और मुझे ज़्यादा खुशी होगी अगर आप लोग ज़्यादा सवाल पूछेंगे, क्योंकि स्पीकर का क्या होता है, वो एक बढ़िया पावर पैक सी पीपीटी बना के लाता है, उसके साथ ही उसने रात को बैठ के पूरी एक उसकी कमेंट्री तैयार की होती है, और वो आते ही बस धड़ाधड़ शुरू हो जाता है. मैं यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ. कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी लास्ट टॉक अटेंड की थी, है कोई इसमें? नहीं, मजा आया. ठीक है. सो मैं एक आपको वीडियो दिखाऊंगा पहले. I always put one video, 2-3-5 minutes video, just to bring my audience into that atmosphere. कि भी अगले 30 मिनट, 40 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट क्या हो. ठीक है. सो शुरू करें. मुझे मन से. अच्छा, खुशी कितना टाइम दोगे मुझे? 2 घंटे बहुत है. अरे बेहोश नहीं हूँ. 1.5 hour. अभी भी आवाज नहीं आई. कंसेंट मिलनी चाहिए. 1 घंटा, 45 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट. चला ही ना जाऊं मैं.
लालची होता है। इस लालच के ऊपर एक पंजाबी में चुटकुला है, पुराना है, बाद में सुनाऊंगा। अभी हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट्स ऑल अबाउट इंक्यूबेशन एक्सेलरेशन, हम इस पे आज बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इन दो टर्म्स को और इन दो कॉन्सेप्ट्स को समझने से पहले, इसके ऊपर जानकारी लेने से पहले, हमको कुछ टर्म्स हैं, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, पिचिंग, इवैल्यूएशन, हैकाथन, ब्ला ब्ला ब्ला, इनके ऊपर कुछ जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। सो किसी को स्टार्टअप का मतलब पता है? इसने स्टार्टअप किया है यहाँ पर? नहीं किया। आइडिया किसी ने पिच किया कहीं पर? किया है? हाथ खड़ा करिए। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर इस हॉल में कोई ऐसा एक आधा प्राणी मिल जाएगा तो। ठीक है, चलिए एक वीडियो है जो आप चला लीजिए। टॉम एंड जेरी, कौन सी आप पसंद करते हैं जी, टॉम एंड जेरी या मिस्टर बीन? मिस्टर बीन, मुझे भी यही लगता था, मिस्टर बीन। आप पूरी वीडियो देखिए 3 मिनट की, और फिर मैं आप इस वीडियो के ऊपर सवाल पूछूंगा। ऐसे थे मिस्टर बीन और उनका आइडिया स्मार्ट, इट वाज इनोवेशन। उसको कहा गया कि आपने ये लॉन का घास काटना है, ही वाज हैविंग ए लॉन मूवर, कटल था, नहीं चला, स्टार्ट नहीं हुआ। सो इनोवेशन, आइडिया क्या आया कि जो खरगोश है इनके साथ जो है इसको हम लोग साफ कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनोवेशन। कोई भी जो नया आइडिया है खुराफाती, और आइडिया हमेशा ऐसा ही चलता है जो खुराफाती होता है, ठीक है। शुरू करते हैं। नहीं ये पीपीटी। So we will be discussing about incubator versus accelerator. What is incubator and what is accelerator? So the term incubator and accelerator form a basic part of the vocabulary of the entrepreneurs. Entrepreneurship क्या है? कोई बता सकता है? What is entrepreneurship? Is it first year? Makes sense. Third year. So third year वालों को तो entrepreneurship के बारे में थोड़ा पता होगा। अच्छा, entrepreneur, business, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, व्यापारी भी नहीं पता।
नहीं कुछ दवाई खिला के तो नहीं बिठाया है। ये 4 हैं। नहीं मैं तो बताऊंगा इनको, मगर ये 4 हैं, लेकिन वो जो अंदर से इनके आ रहा है वो गले तक आगे अटक जाता है। बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, ये बड़े बज़वर्ड्स हैं आज, ठीक है। बिजनेसमैन को हम लोग एंटरप्रेन्योर, कोई भी जो बिजनेस है उसमें ना वो एंटरप्रेन्योर, और जो उसके अंदर इन्वॉल्व है वो उसकी एंटरप्रेन्योरशिप है, और वो जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है। सो द टर्म इंक्यूबेटर एंड एक्स, ये इनके ऊपर लागू नहीं होते हैं। ये इंक्यूबेटर और जो एक्सेलरेटर है, जो एक रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं कि माँ बाप का बिजनेस चल रहा था, उसी के ऊपर जाके हमने उसको संभाल लिया, और आगे दुकान पे थे, वकील का बेटा वकील था, नेता का बेटा नेता, ये उनके ऊपर लागू नहीं होता है। ये एंटायरली जो एक नया वर्ड आजकल आप सुन रहे हैं, स्टार्टअप, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले किसी ने ये शब्द नहीं सुना, राइट। एंड हैट्स ऑफ टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 15 अगस्त 2016 को लाल किले से जो है इस शब्द को एक बस थम दिया। उस समय इंडिया जो है वो शायद 9th या 10th नंबर पे भी वर्ल्ड में नहीं था, और आज हम लोग 2nd नंबर पे। इतना फास्टेस्ट पेस पे जो है वो काम हो रहा है इस टर्म के ऊपर। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक आपने टर्म सुनी होगी कि हम लोगों को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। ये तो सुना है ना? शुक्र है, मुझे लगा कि कुछ मुझे आपके अंदर है कि हम लोगों को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। एंड वो जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमने बनना है वो नौकरी पेशा करके नहीं बनना। मिस्टर माइक आपको जाते जाते क्या कह के गए थे? एक उन्होंने शब्द पूछा था, क्या पूछा था? अमीर बनना है? मैं भी पूछता हूँ, अमीर बनना है? किसने नहीं बनना? चलो वही हाथ खड़ा करो। अरे है एक अरे गलती से उठ गया। आप उठिए। यस, हाँ आप अमीर नहीं बनना है आपको? है रिच बनना है नहीं? ग्रेट। क्या नाम है आपका? अगर आप मिडिल भी सेटल हो तो भी हो गया। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको रिच ही बनना। नहीं इट्स ओके, यू गुड नेम प्लीज। इनके लिए एक बार तालियां। और ये तालियां मारने का फायदा बड़ा होता है, पता है आपको? इतनी अच्छी बढ़िया एसी हवा, उसके अंदर कुछ लोग पीछे सो भी रहे होते हैं, आराम भी कर रहे होते हैं, तो जैसे ताली बजती है तो बड़ा ही खड़े हो जाता है। अच्छा क्या हुआ? पता नहीं होता क्या हुआ। तो मैं बीच में सेशन में आप लोगों को ये गुजारिश करता रहूंगा कि आप ताली बजाते हैं, ठीक है? लेकिन ज्यादा नहीं। ज्यादा तालियां कौन बजाते हैं पता है ना? ज्यादा तालियां कौन बजाते हैं? सो जो नॉर्मल हमारा बिजनेस है उसके ऊपर ये दोनों टर्म जो है वो लागू नहीं होती हैं। लेकिन ये जो नए तरह का स्टार्टअप बिजनेस आया है, और उन स्टार्टअप्स को, उन आइडियाज को हम लोग कैसे करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, कहां से वो उसकी जर्नी शुरू होती है और कैसे वो आगे बढ़ती है, उनके लिए इंक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर वो बिल्कुल फिट है। So the term incubator and accelerator form a basic part of the vocabulary of the entrepreneurs, your businessman. If you have an idea, you want to turn into a business, or if you have a business with great potential that you want to develop and accelerate, you may need to turn to external agents to help you with your purpose. This is where the incubator and accelerator come into play. आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है तो भी आपको इंक्यूबेटर की जरूरत पड़ेगी, और आपके पास एक अच्छा आइडिया है जिसके लिए आपको उसको आप एक्सेलरेट करना है, उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेज में एक्सेलरेटर के पास जाना है। क्लियर हुआ कुछ? इंक्यूबेटर शब्द पहले सुना है कभी किसी? इंक्यूबेटर नहीं। इस तस्वीर में कुछ नजर आ रहा है आपको? क्या है? हॉस्पिटल्स के अंदर जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, और जो पर्टिकुलर एक
इंक्यूबेटर वार्ड होता है, उसको इंक्यूबेटर यूनिट भी कहते हैं। और यहाँ प्रीमच्योर जो बेबीज हैं उनको रखा था। अगर आप राइट साइड वाली, ये उसका प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है उसका, ये इंटायरली प्रीमच्योर बेबी जो है उसको इसमें रखा हुआ है, ये भी एक रखा हुआ है, ये 3-4 तरह की मैंने ये इस सिद्धांत पे काम करता है। सो इस इंक्यूबेटर के अंदर जो प्रीमच्योर बेबी होता है उसको रखा जाता है, क्योंकि उसके बचने के चांसेस काफी कम होते हैं, उसको वो ग्रोथ नहीं मिल पाई प्रीमच्योर डिलीवरी के चक्कर में। सो उसको इंक्यूबेटर में वो हालात दिए जाते हैं, वैसी रोशनी दी जाती है, वैसा टेम्परेचर दिया जाता है। इनकी बातें ज्यादा जरूरी है, पूछ लीजिए इनको, अभी ये अमीर नहीं बनना चाहती। सो हर वो कोशिश की जाती है कि उस बच्चे को सर्वाइव करवाया जाए। दिस इज द रोल ऑफ ए इंक्यूबेटर। हम ये उस इंक्यूबेटर की बात कर रहे हैं जो कि मशीन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल गैजेट बेस्ड मशीन है, वो हर करती है ताकि वो बच्चा जो है वो रिष्ट पुष्ट और सन के जिंदा रह सके। ऐसा ही रोल जो वो बिजनेस का जो इंक्यूबेटर है उसका आ जाता है। यहां से जो टर्म है वो इंक्यूबेटर है। An incubator can be a company or a person, एक आदमी भी हो सकता है, who helps new ideas and startup companies to develop by providing services such as management training, office space, etc. Incubators extend complete hand-holding to the new entities so that they can be developed into a good organization. Business incubators differ from research and technology parks in their dedication to startup and early stage कंपनीज। सो जो एक इंक्यूबेटर है, जैसे आपने उस इंक्यूबेटर को देखा जो कि चाइल्ड वार्ड में रखा जाता है, यही रोल एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर एक इंक्यूबेटर का है। वहां पर हर उस नए आइडिया को किया जाता है, एवेल्युएट किया जाता है, उसको मेंटर किया जाता है, उसको कोवर्किंग स्पेस दी जाती है, उसको इंडिपेंडेंट स्पेस दी जाती है, उसको अर्ली स्टेज फंडिंग की जाती है, उसको उसकी जो कस्टमर वैलिडेशन के लिए बाहर भेजा जाता है, या बाहर से एक्सपर्ट को जो है वो इंस्टीट्यूट में बुलाया जाता है। भाव हर वो किया जाता है जिससे कि वो आइडिया एक अच्छे बिजनेस प्रपोजिशन में कन्वर्ट हो सके। एवरी एफर्ट इज मेड, दैट्स व्हाई द टर्म इज हियर दैट कंप्लीट हैंड होल्ड। आपके यहाँ भी इंक्यूबेटर जो है बहुत जल्दी बनेगा। डॉक्टर विक्रम बहुत काम उस पर कर रहे हैं। मेरी लास्ट विजिट में हम जगह भी सिलेक्ट कर रहे थे और 1 साल तक कर लेंगे उसको शुरू जी। We are trying to get it running very quickly. Very good. In the coming session, इसी सेशन में। So probably in the coming 15 to 20 days we might be having some kind of a pitching session. pitching session. Yes. Great. खुशी हुई? तो तालियां The मार cash दीजिए। prizes of over 1 lakh rupees to be won. इंक्यूबेटर एक ऐसी जगह होगी जहां पर आपको पैसे मिलेंगे आपके आइडिया के बदले, अदरवाइज बाकी इंस्टीट्यूट में सारी जगह पे आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। Am I right or wrong? Right? So if you have a good idea, wonderful idea, buzzing idea, किसी भी सोशल प्रॉब्लम पे है, जो ई कॉमर्स का है, बिजनेस का है, ई बिजनेस का है, ऑनलाइन बिजनेस का है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट नहीं है इसलिए मैं मैन्युफैक्चरिंग या दूसरी किसी हेल्थ टेक, क्लीन टेक, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर में बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो आईआईटीज हैं या टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनआईटीज हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, वहां पर ज्यादा आइडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग या टेक्निकल या टेक बेस्ड आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बिजनेस बेस्ड आइडिया जो है वो ज्यादा आएंगे। सो वेरी सून वी विल बी हैविंग ए बिजनेस इंक्यूबेटर एट योर इंस्टीट्यूट। Now, this was the incubator. Now, what is the incubation? Right? Incubation is a name given to the process
where an individual or an organization supports the establishment and growth of a startup. Those supporting the startup or new companies are called business incubators. These business incubators see the growth potential and weigh the opportunity before supporting or funneling funds into any startup. The selection of a startup involves in a high level of research before any decision is taken to support or fund a startup. In a nutshell, we can say the goal of incubation is to increase the success chances of business. The last line है, in a nutshell, we can say the goal of incubation is to increase the success chances of business. Incubator का sole purpose यही है कि आपका एक जो छोटा सा जो आइडिया है उसको इस तरीके से मेंटर किया जाए, उसको इस तरीके से फाइन ट्यून किया जाए, उसको इस तरीके से इवैल्यूएट करवाया जाए और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन से उसकी फाइन ट्यूनिंग करवा के उसको एक अच्छे बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट किया. ये इंक्यूबेटर का सोल पर्पस. Now, how incubator works? What will be the process we will be having here at SD College? We will be having all application process online. आपको ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पे जाना है, कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है, इंक्यूबेटर की वेबसाइट पे जाना है. एक 2-पेज फॉर्म है, बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन उसमें है. नाम है आपका, आपका रोल नंबर है, आपका क्लास है, आपका आधार कार्ड नंबर है, चाहिए आपको हमको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन एंड आपका जो ब्रीफ है आइडिया की वो चाहिए. है क्या आइडिया, वो किस फील्ड का है, कितनी देर से आप इस पे काम कर रहे हैं, आपकी टीम में कौन कौन है, राइट, एंड आप इसको आगे कहां तक ले जाना चाहते हैं. ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो है आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है एंड यू विल बी हैविंग वन एक्नॉलेजमेंट. वो जो आपका एप्लीकेशन है वो टीबीआई मैनेजमेंट के इंक्यूबेटर मैनेजमेंट के पास आ जाएगा एंड उसको फिर सेग्रीगेट करके हम लोग जो है उसकी इवैल्यूएशन करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे कि वाकई इस आइडिया में जान है कि नहीं है. अब सवाल होता है कि वो इवैल्यूएशन कौन करेगा. So there will be minimum 2 experts matching to those ideas, matching to those domain, plus incubation management, plus an external. So all the 2 or 3 will evaluate that idea, and उस evaluation के बाद बच्चों से पूछा जाएगा, टीम से पूछा जाएगा कि what is your expectation now? क्योंकि कोई भी जो आइडिया है वो पैसे के बिना तो पूरा नहीं होगा, right? So that is called early stage funding, जिसको हम लोग बिल्कुल इनिशियल फंडिंग कहते हैं. अब आप लोगों के ज्यादातर आइडिया जो हैं वो क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस ऑनलाइन से रिलेटेड होंगे तो उसमें आपकी जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है दैट विल बी टू हैविंग योर ओन नेम, ओन वेबसाइट, आपको सर्वर स्पेस चाहिए एंड उसके लिए आपको पैसे चाहिए. अर्ली, दैट इज कॉल्ड अर्ली स्टेज फंडिंग. ठीक है. सो आपको कुछ भी जो है अपनी टीम से वो लेने की जरूरत नहीं है. सो कॉलेज विल बी देयर टू हेल्प यू. लेकिन उससे पहले आपको 0 to 3 मंथ्स का जो एक फेज है उसको हम लोग अर्ली स्टेज डेवलपमेंट करेंगे, राइट. इंक्यूबेटर भी जो है वो आपको मैप करेगा कि वाकई आपका इंटरेस्ट है, आपने आइडिया दिया, बच्चे क्या है ना उत्साह में आइडिया दे दिया, उसके बाद अपनी रेगुलर स्टडीज आ गई. और ये मैंने देखा है, मेरा अपना पिछले 8 से 9 साल का तजुर्बा क्या है कि जो रेगुलर स्टडीज में बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट एक बार रहता तो है, वैल्यूएशन कराया अवार्ड भी ले लिया, लेकिन उसके बाद फिर इंटरेस्ट लूज होने लगता है. क्यों? क्योंकि उनकी जो रेगुलर स्टडीज जो है उनका उसके ऊपर प्रेशर होता है. लेकिन जो इस चीज को थाम के बैठे रहते हैं, जैसे प्रोफेसर माइक ने कहा कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको फिर एंटरप्रेन्योरशिप ही एक ऐसी है जिससे आप अमीर आपको बना सकती है. अगर जॉब जो है वो आपको अमीर तो नहीं बनाएंगी, हैंड टू माउथ तो बनाएंगी, आपका गुजारा तो होने लायक हो जाएगा. सो इट विल बी इवैल्यूएटेड फंडिंग. नाउ स्टेजेस ऑफ इंक्यूबेशन है कितनी, स्टेजेस क्या है, इंक्यूबेशन किस किस स्टेज में आती है. The whole process of business incubation is broadly divided into 3 categories. Number 1, physical facility support. This refers to the incubation services provided within the physical facility. This is the physical support. So what is the physical support? आपको उस incubator के अंदर एक separate co-working space दी जाएगी. जैसे आप
अपनी क्लास में तो एक डेडिकेटेड चेयर है आपका, आपका ड्यूल डेस्क है, उस पर आप बैठते हैं, नहीं है जहां भी आके बैठे। लेकिन इंक्यूबेशन के अंदर आफ्टर योर सिलेक्शन, आफ्टर एवेल्युएशन, after getting your incubation number, after getting your identity that yes, your idea is good, it is workable, and we are going to help you. Your team will be provided a identical space in the incubation, along with computation space. आपको एक कंप्यूटर दिया जाएगा, 2 कंप्यूटर चाहिए होंगे, 2 कंप्यूटर दिए जाएंगे एक पॉलिसी के तहत, एंड आपको एक इंडिपेंडेंट स्पेस दी जाएगी जहां पर आप अपने इवनिंग आवर्स में, फ्री आवर्स में आके अपना सिस्टम लॉगिन करेंगे और आप अपने आइडिया पे काम करना शुरू करेंगे। इसमें आपको पेंट्री की सुविधा मिलेगी, इसमें आपको फोटोकॉपी की सुविधा मिलेगी, हर वो सुविधा मिलेगी जो कि आपको अर्ली स्टेज डेवलपमेंट के लिए उसमें चाहिए। दिस इज कॉल्ड फिजिकल फैसिलिटी। Number 2, networking facilities. After the physical facility, business incubator helps the startup with the networking facilities so as to grow the business. Networking. अब आपको आइडिया आपका आया, evaluate हो गया, आपको एक स्पेस मिल गई, 3 महीने के अंदर हमने भी आपका इंटरेस्ट देख लिया, इंक्यूबेटर ने भी देख लिया, आपका इंटरेस्ट भी पता चला, टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, उसको फिर लाइक माइंडेड जो उनका डोमेन है उसके साथ नेटवर्क करवाया जाएगा। अगर उस लाइन का ऑलरेडी कोई स्टार्टअप है तो उससे इंटरेक्ट कराया जाएगा, अगर उस लाइन का कोई बिजनेस है में उससे वो इंटरेक्ट कराया जाएगा, सो दैट आपकी नेटवर्किंग से फिर आपको पता चले कि आपने इस आइडिया को आगे कहां तक लेके जाना है, और वो जो लेके जाना है उसकी जो जर्नी है वो कैसे कैसे होके जाए। सो दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। द नंबर 3 is the sports services. Once the business is up and running, the incubators offer various sports services to the business in order to run the business smoothly. आइडिया आया, evaluate हो गया, हमने आपको नेटवर्क करवा दिया, उसके बाद आपको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। Then incubator will ask you to incorporate your company. अब इस स्टेज में आके आप एक कंपनी के डायरेक्टर, मालिक बन। The incorporation process will also be taken care by the incubator. आपको उसके लिए किसी सीए को, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, किसी कंपनी सेक्रेटरी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। We will be having the company secretary, we will be having the chartered accountant, we will be having the legal expert on our panel, those who will guide you कि आपकी कंपनी में 2 डायरेक्टर होने चाहिए। कंपनी लॉ पढ़ा है किसी ने? कंपनी इनकॉर्पोरेशन पढ़ा है? राइट, पढ़ा in the process, right? So आपको बताया जाएगा अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, सो 2 टीम मेंबर हैं। अब नहीं है तो कोई बात नहीं, say this one girl is having the idea, she can have her father, her mother, her sister into the board as a director. नहीं है तो हम लोग LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सिंगल कंपनी है उसको भी हम लोग कर सकते हैं। 3 डायरेक्टर हैं, 3 हो सकते हैं, इसमें 3 टीम मेंबर हैं, 3 डायरेक्टर होते हैं। अब उसके बाद उनकी आपस की शेयर होल्डिंग क्या है, ऑथोराइज कैपिटल कितनी रहेगी, मार्केट कैप कितना रहेगा, ये सारा जो एक्सपर्टाइज है ये आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी जो है वो एडवाइस करेगा, जो कि इंक्यूबेटर के पैनल पे होगा। एंड इससे ज्यादा खुशी की बात, अगर पॉलिसी ये अलाउ करती है तो जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन चार्जेस है वो भी आपका इंक्यूबेटर ही पिएगा। और इससे ज्यादा एक खुशखबरी की बात मैं आपको बताऊं कि पूरे हिंदुस्तान में चंडीगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां पर के कंपनी इनकॉर्पोरेट करना सबसे सस्ता प्रोसेस। आपके पड़ोस में पंजाब है, अगर पंजाब में हमने 1 लाख रुपए के साथ एक ऑथोराइज कैपिटल के साथ 2 डायरेक्टर के साथ एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी हो तो गवर्नमेंट की जो लाइसेंस फीस है वो 10,500 रुपए है, राइट। डिजिटल सिग्नेचर बनने हैं तो करते कराते एक कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड
वो पंजाब के आप, ये मोहाली कितनी दूर है? 5 किलोमीटर भी नहीं। वही जो कंपनी मोहाली में आपको 28 से 27,000 रुपए की प्रोफेशनल चार्जेस के साथ कॉस्ट करेगी, चंडीगढ़ में वही कंपनी जो है वो आपको 5 से 4,500 रुपए में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। सो दिस इज द डिफरेंस कि आपको चंडीगढ़ में कंपनी इनकॉर्पोरेट करना कितना और सस्ता। सो दिस ऑल इनकॉर्पोरेशन ऑफ द प्रोसेस विल बी बियर बाय द इनक्यूबेटर। आपको पैसा हम दे रहे हैं, कोवर्किंग स्पेस हम दे रहे हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस हम दे रहे हैं, उसके बाद आपको कोवर्किंग स्पेस हम दे रहे हैं, मेंटरशिप हम आपकी दे रहे हैं, आपको नेटवर्किंग हम दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? सिर्फ फोकस करेंगे अपने आइडिया के ऊपर काम करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, ताकि वो एक अच्छे सी बिजनेस प्रपोजिशन में कन्वर्ट। इंक्यूबेटर डज नॉट वांट कि आपका सारा फोकस जो है वो ये हो कि अच्छा मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, इसकी ये कंप्लायंस जानी है, इसकी ये कंप्लायंस जानी है, इसकी आरओसी जानी है, इसकी एओसी होनी है, इसकी इनकम टैक्स रिटर्न जानी है। नो, you please focus fully on the concept development. जो आपका आइडिया है उसको डेवलपमेंट पे आप काम करें। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? इंक्यूबेशन प्रोसेस। Now accelerator. A business accelerator is very similar to an incubator, almost बराबर ही है। फर्क क्या है वो बाद में समझा देते हैं। But differs in that they usually have a greater focus on companies entering or growing in a national or global market. फोकस अलग अलग है। जो इंक्यूबेटर है वो अर्ली स्टेज आइडियाज को, जो बिल्कुल निश स्टेज पे होते हैं, उनको हैंडल करता है, उनको छोटे बच्चों की तरह उनकी हर तरह की हैंड होल्डिंग करता है। ये दो, वो चाहिए, वो दिया, वो दिया। इंक्यूबेशन में और स्पेस चाहिए, वो दे दिया। प्रिंटर की जगह चाहिए, प्रिंटर दे दिया। फोटोकॉपी की चीजें, फोटोकॉपी दे दी। मार्केट से उसकी वैलिडेशन को करानी है तो वो करवा दिया। उसी लाइन से रिलेटेड को दूसरा स्टार्टअप है तो उससे नेटवर्क करवा दिया। ये अर्ली स्टेज डेवलपमेंट हो जाता है। बट वेयर द एक्सेलेरेटर दे फुल्ली फोकस ऑन द डेवलप्ड आइडियाज, जो एक स्टेज पास कर चुके हैं, जिनके एक मिनिमम लेवल जो है वो दे चुके हैं, वहां से उसको एक्सेलरेट करना है। उसके आपके पास 2 एम्प्लॉय हो चुके हैं, 3 एम्प्लॉय हो चुके हैं, 4 एम्प्लॉय हो चुके हैं, आपका जो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है वो तैयार हो चुका है, पीओसी बोलते हैं उसको टेक्निकल टर्म्स में। आपका पीओसी के बाद एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो चुका है। उसके बाद आपको एक्सेलरेटर की जरूरत पड़ेगी। बट इस एरिया में अभी कोई भी एक्सेलरेटर जो है वो नहीं। सो एक्सेलरेटर का रोल भी जो है वो इंक्यूबेटर ही कर रहे हैं। दैट्स व्हाई यहाँ लिखा हुआ है the accelerator is very similar to an incubator but differs in that they usually have a greater focus on the companies entering or growing in national or global market. Focus है। Business accelerators are more likely to be financed by venture capitalists looking for an opportunity to finance growth potential through defined action plans. जो accelerators होते हैं वो private bodies के होते हैं, venture capitalists होते हैं, उनको VCs बोलते हैं हम लोग, venture capitalists। वो एक खास वेंचर होता है, उसमें अपनी कैपिटल लगाते हैं। उनको लालच क्या होता है कि मेरे इस कंपनी में हिस्सेदारी रहेगी, मेरा इस कंपनी में स्टेक रहेगा, शेयर होल्डिंग रहेगी। तो ये प्राइवेट जो प्लेयर्स होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, एक्सटर्नल बिजनेसमैन जो होते हैं, वो इन एक्सेलरेटर्स को चलाते हैं। Objectives of incubators and accelerators: allocation of physical spaces for entrepreneurs to develop their business, technical assistance and mentoring, transversal services like accounting, computer science, industry connect, legal compliance, etc. यहाँ एक term आई है computer science. So what does mean by computer science? All computational support, all, either it is hardware, software, website, server space, etc. blah blah blah. जो भी आपको उस बिजनेस में चलाने के लिए चाहिए, चाहे आपको अपना सोशल मीडिया हैंडल करना है, अपनी वेबसाइट बनानी है, चाहे अपने प्रोडक्ट का लॉन्च करना है, वो सब जो है वो कंप्यूटेशन स्पेस में आ जाता है। नेटवर्किंग, देन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस, और आपके जो बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करना। डिफरेंसेस: टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसेस बी
ये 6 से 7 डिफरेंसेस हैं इसमें, उसको एक एक करके हम लोग, ये एक उसकी समराइज मैंने किया हुआ है, इसको एक एक करके आगे इंडिविजुअली मैंने समझाने की कोशिश की है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इंक्यूबेटर जो है और एक्सेलरेटर क्या फर्क है? The concept of incubator was born in the academic institutions at government level. जो इंक्यूबेशन है ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से आया है, वहीं आया है और गवर्नमेंट लेवल पे आया है। जो एक्सेलरेटर है ये नॉर्मली एक प्राइवेट है। अब इंक्यूबेटर के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे ये स्टार्टअप वर्ड आया तो आइडियाज आने शुरू हुए। जब आइडियाज आने शुरू हुए तो फिर ये जाएंगे कहाँ? नॉर्मल इंस्टीट्यूशन में तो उनके लिए कोई खास जगह नहीं है, राइट, क्योंकि उनकी आपको स्पेशल टेक केयर करनी है। तो फिर इंक्यूबेटर्स है। अभी इन अराउंड चंडीगढ़ ही जो है 5 से 6 अच्छे इंक्यूबेटर हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब इंक्यूबेटर भी आगे जो है वो 3 तरह के मेजरली हो जाते हैं। एक तो सिंपली इंक्यूबेटर है, जैसे एक लैब है, उसमें हम बैठे, ऑफिस स्पेस दी, कंप्यूटेशन दिया, हो गया, आप आए, अपना काम किया, खत्म, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेटर। दूसरा क्या है? बिजनेस इंक्यूबेटर, जहां पर आपको एक स्पेसिफिक या स्पेसिफिक बिजनेस जो है उनको करने के लिए मेंटरशिप किया है। और तीसरी टर्म है टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, जहां प्योरली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बिजनेस आइडिया जो है उनको इंक्यूबेट किया जाता है। जो नॉर्मल इंक्यूबेटर है वो 1000 से 2000 3000 स्क्वायर फीट एरिया में सेटअप हो जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे जो हैं, जो टीम्स होती हैं, उनको इंडिपेंडेंट ऑफिसेज भी देने होते हैं, उनको कॉन्फ्रेंस रूम की सुविधा भी देनी होती है, उनको 4 to 5 के सिटिंग में डिस्कशन स्पेस भी देनी होती है, उनको उसी के अंदर ही कैफेटेरिया भी देना होता है। जो बिजनेस इंक्यूबेटर होता है उसमें मेंटर्स रूम आ जाते हैं, अदर फैसिलिटीज आ जाती हैं। और जो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर होते हैं उसमें फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो उसके थ्रस्ट एरियाज जो हैं उससे रिलेटेड जो मशीनरी है, जो लैब्स है, जो वर्कशॉप जो हैं वो एस्टैब्लिश करनी है। सो एट दिस इंस्टीट्यूट वी विल बी हैविंग ए बिजनेस business state incubators act in the early stage of the venture, बिल्कुल अर्ली स्टेज, जहां आपका आइडिया बिल्कुल रॉ है, अर्ली स्टेज जहां अभी उसकी वैल्यूएशन होनी है, उसका कंसेप्चुअलाइज होना है, उसकी स्केलिंग होनी है, इंक्यूबेटर्स का रोल वहां पर शुरू होता है। मैच्योरिंग द आइडिया, हेल्पिंग टू वैलिडेट द हाइपोथेसिस बिजनेस एंड हेल्पिंग बिल्ड द कंपनी। जैसे मैंने बताया कि थर्ड स्टेज में जाके हम आपको कहते हैं कि आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करिए अभी, फिर क्योंकि जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी है अर्ली स्टेज से पहले। अर्ली स्टेज में क्या है कि आपको एक वेबसाइट बनानी है, आपको अपना डोमेन खरीदना है, तो वो तो अर्ली स्टेज हेल्प हो गई, राइट। वो उसके लिए कंपनी ना भी इनकॉर्पोरेट की जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट व्हेन यू हैव टू रिसीव द फाइनेंशियल असिस्टेंस, say in terms of 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 5 lakh, or then more, then you have to incorporate the company, because the initial funding will be given to the teams, but the financial assistance will be given to the companies, only companies. Accelerator, the accelerator in more advanced stages with already established companies that show growth potential and that help to achieve the next level of project. जो एक्सेलरेटर है वो ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश आइडिया जो है वो बिजनेस एस्टैब्लिश हो चुका है और उनको नेक्स्ट स्टेज के लिए जाना है, वो उस स्टेज में उसकी जो है वो हेल्प करते हैं। ये बिजनेस स्टेज रिक्वायरमेंट, द इंक्यूबेटर्स आस्क फॉर बिजनेस प्लान्स बिकॉज़ दे नीड ए मोर फॉर्मल इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड आइडियाज, व्हेयरएज द एक्सेलरेटर दे आस्क फॉर बिजनेस मॉडल बिकॉज़ दे फोकस ऑन गुड आइडियाज दैट मेक सेंस। जो इंक्यूबेटर है वो आइडिया मांगता है, उसकी बड़ी इवैल्यूएशन करता है, उसके ऊपर सर्च करता है, उसकी सॉफ्ट ट्यूनिंग करता है, उसकी हार्ड ट्यूनिंग करता है, उसकी फाइन ट्यूनिंग करता है, फिर उसको जाके आगे में कन्वर्ट करता है। मेरा जो एक्सेलरेटर हैं वो सीधे बिजनेस मॉडल की बात करते हैं कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। हम यहाँ बिजनेस प्लान की बात करते हैं, वो बिजनेस मॉडल की बात। क्लियर है? लीडरशिप, incubators are led by managers with experience in government mediation, universities and businesses.
इंक्यूबेटर को चलाने के लिए एक सीईओ होता है, इंक्यूबेशन मैनेजर होगा, जिसका गवर्नमेंट के साथ लाइजनिंग होगी, गवर्नमेंट की है, जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज को जानता है, जो यूनिवर्सिटी को जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैनेजमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कराना है, उसको इंक्यूबेशन की कैसे फंडिंग करवानी है, वो काम करता है। Whereas accelerators are led by established entrepreneurs और experience in them. जो accelerators होते हैं वो experience जो बिजनेस है, जो established businessmen जो होते हैं वो चलाते हैं और वो अपना स्टेक रखते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल एक इंक्यूबेटर से एक आइडिया जो है वो निकल के चला गया, उसको जो कॉलेज के इंक्यूबेटर ने जो हेल्प कर दी और आइडिया अच्छा प्रेपरेशन बन गया, उनको 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए तक की जो इनिशियल फंडिंग थी वो तो कॉलेज ने दी, राइट। अब उसकी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो 25 लाख रुपए की, either they go for bank loan, right, otherwise they go for the private venture capital, right। अब यहाँ एक्सेलरेटर का रोल आता है। अब क्योंकि इस एरिया में कोई एक्सेलरेटर नहीं है, तो जैसा मैंने बताया कि जो इंक्यूबेटर है वो ऑलमोस्ट एक्सेलरेटर का रोल ही अदा कर रहा है। सो फिर ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो टीम्स होती हैं, वो आइडिया पिचिंग सेशन के लिए जाती हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। अगर कल सैटरडे को एक बिग फिश पूल जैसे शार्क टैंक करके प्रोग्राम आता था, आपने देखा होगा, तो उसमें वो ऑन दी स्पॉट वो कहते हैं ठीक है इसमें मेरी 2% इक्विटी है और इतने पैसे मैं लगाने को तैयार हूं, राइट। सो कल एक सिटी यूनिवर्सिटी में आई वाज नॉट देयर बिकॉज ऑफ माय इलनेस, सो अदरवाइज वहां पर ऑलमोस्ट 14 और 15 जो आइडियाज हैं, जो अर्ली स्टेज आइडियाज थे, उनको मोर देन 35-36 लाख रुपीस की जो फंडिंग है वो ऑन दी स्पॉट और वेंचर कैपिटलिस्ट होता है, जो बिजनेसमैन होता है, बड़ा श्रूड होता है, राइट। उसको पता होता है कि ये आइडिया आगे जाके बहुत कमाल करने वाला है, बहुत बज़वर्ड करने वाला है, नहीं तो ये मेरा ही कंपटीटर बनने वाला है, तो वो उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है। वो उसको पहले पैसे देगा, करेगा, आएगा, फिर उसमें स्टेक डालेगा, और फिर अगर वो आइडिया बहुत अच्छा चलता है तो उसमें या तो अपनी हिस्सेदारी रखेगा या उस कंपनी को टेक ओवर कर लेगा। और जिनके पास वो आइडिया है उनको इस चीज की परवाह नहीं होती, क्योंकि अगर वो उस आइडिया पे काम करके उसको वहां ले जा सकते हैं तो उनके पास ऐसे 10 आइडियाज और भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने, आपने न्यूज में सुना होगा, पढ़ा होगा कि एक कंपनी के ऊपर सिंपली 30 से 35 लाख रुपए के करीब जो खर्चा आया, लेकिन उसका जो टेक ओवर हुआ वो कितने में हुआ? 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़। क्यों? क्योंकि जिसका उसमें पैसा वेंचर कैपिटलिस्ट का लगा था वो थोड़ा सा इनसिक्योर हुआ कि ये कल को मेरे प्रोडक्ट को कहीं ना खा जाए, सो मैं उसमें अपनी डाल के या तो इसमें 50-50 कर लूं, 40 कर लूं, या इसको फिर टेक ओवर कर, राइट। सो जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसको चलाते हैं। स्पोर्ट incubators use public funds notices for themselves and the incubated company. incubator जो होते हैं उनको पब्लिक सरकार पैसा देती है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अभी कम से कम 5 या 6 डिपार्टमेंट ऐसे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एग्री है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स है, माइटी है, बायरेक है, बायोटेक्नोलॉजी, बिग डाटा ग्रांट है, करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है जो कि इंक्यूबेटर्स को देने के लिए वो तैयार रहते हैं। सिर्फ उनको चाहिए अच्छे इंक्यूबेटर्स, अच्छे कॉलेजेस, अच्छे होस्ट इंस्टीट्यूट लाइक एसडी कॉलेज। अगर इस एरिया के सबसे अच्छे इंक्यूबेटर की अगर हम बात करें तो वो आईआईटी रुड़की है, दैट इज द टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, एंड गवर्नमेंट ने उसको डीएसटी ने 5 करोड़ रुपए की जो वो ग्रांट दी हुई है, एंड उसमें जो लोग काम करते हैं उनकी तनख्वाह भी गवर्नमेंट देती है। एंड व्हाट इज द सरप्राइजिंगली कि गवर्नमेंट उस ग्रांट को देने के बाद आपसे एक पैसा वापस भी नहीं मांगती। सेकेंड स्टेज पे फिर वो आपको सीड सपोर्ट फंड देती, ताकि जो बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल उस आइडिया पे काम कर लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ट्रिपल एस स्कीम है, सीड सपोर्ट सिस्टम है,
उसमें एक अच्छे आइडिया को जो थोड़ा वैलिडेट हो चुका है, पीओसी जिसकी बन चुकी है, प्रोटोटाइप बन चुका है, उसको 10 लाख रुपए तक की सीड ग्रांट देता है। सीड ग्रांट सुना है तो विषय में? सीड किसको बोलते हैं? बीज को डाला, पानी दिया, उसकी अच्छी तरह केयर की और एक अच्छा फल बन गया। इसी तरीके से जो सीड सपोर्ट है 10 लाख रुपए तक की गवर्नमेंट देती है। एंड अभी कुछ डिपार्टमेंट्स ने अपनी जो सीड सपोर्ट है उसको 50 लाख रुपए तक, अप टू 50 लाख, और 10 लाख रुपए तक की जो सीड सपोर्ट है उसमें आपने काम किया, अपनी सबमिट की, बिजनेस को जनरेट किया, गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन आपसे वो पैसा वापस भी नहीं मांगते। For 24 months of its establishment. Accelerators provide financial support to attractive investors. जो incubators होते हैं वो 12 से 24 महीने, 1 से 2 साल तक जो है वो आपको इनिशियल फंडिंग देते हैं, आपको हेल्प करते हैं, और जो एक्सेलरेटर्स होते हैं वो चेक करते हैं फाइनेंशियल, क्योंकि उसमें उनको स्टेक लगाना होता है, वो बड़ी कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट उसमें जो है वो करते हैं। Support time. The incubators only assist in preparation to receive the investment from other entities. जो incubators होते हैं उनमें या तो जैसे आप IISc कॉलेज की अगर हम बात करें तो इनिशियली जो होस्ट इंस्टीट्यूट है, जो ये इंक्यूबेटर कंपनी कॉर्पोरेट होगी ना जो इंक्यूबेटर को रन करेगी, एक और चीज मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ये जो इंक्यूबेटर्स हैं वो भी इंस्टीट्यूशन के दायरे से बाहर रहे, इंडिपेंडेंटली काम करें, इसलिए उनको भी एक सेपरेट सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट कंपनी के तहत ही देते हैं। उसकी पहली कंडीशन, वो एक इंस्टीट्यूशन की तरह नहीं चलेगी, जैसे आपके यहाँ बीकॉम की क्लास चल रही है, एमकॉम की क्लास चल रही है, एमबीए की क्लास चल रही है, ऐसे नहीं चलेगी। वो एक सेपरेट सेक्शन 8 एंटिटी जो है उसके तहत वो काम। This is stages of incubation, pre-incubation, early stage, classic incubation and graduation. जो last आप देखेंगे graduation, जो 24 month to 36 months का टाइम होता है, जैसे हम कहते हैं 3 साल में ग्रेजुएशन करते हैं, इसी तरीके से इंक्यूबेशन से भी जो है, इंक्यूबेटर से भी जो है आपकी ग्रेजुएशन होती है। वो ग्रेजुएशन आपके स्टार्टअप आइडिया की, राइट? इसके ऊपर अभी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, ये स्टार्टअप की डेफिनेशन आप जरूर समझ लीजिए। स्टार्टअप इज ए कंपनी दैट इज द इनिशियल स्टेजेस ऑफ बिजनेस। बिल्कुल, जो इनिशियल स्टेज है। Founders normally finance their startup and may tend to attract outside investment before they get off the ground. Funding sources include family, friends, venture capitalists. Startups must also consider where they do business. ये डेफिनेशन में आ जाएगा इनोवेशन एंड स्केलेबल। आपका जो भी आइडिया है वो इनोवेटिव और स्केलेबल होना चाहिए, उसकी नेक्स्ट स्टेज रूट आपको देखना। एंड ओरिजिनल एंटिटी होनी चाहिए उसकी, वो आपका खुद का आइडिया होना चाहिए, कहीं के कॉपी पेस्टेड या चुराया हुआ नहीं। स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, बहुत काम इस पे हो रहा है, बहुत सारी जो है ये बेनिफिट्स हैं जो स्टार्टअप्स के। आपको डीपीआईटी अगर रिकॉग्नाइज हैं आप, सेक्शन 80 आईसी के अंदर एक आईपीआर टर्म आती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आपकी जो आपका जो आइडिया था, अगर आपने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में क्या होता है, आइडिया की चोरी, राइट? तो आपको अपना जो इंटेलेक्ट है, जो आपका आइडिया है, उसको प्रोटेक्ट करना है। एंड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो आईपीआर सिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 80% डिस्काउंट पे जो है वो देती है अगर आप डीपीआईटी रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप हो जाए।
टैक्स बेनिफिट्स हैं, एनी जी कोई सवाल? अच्छा कौन कौन अपना स्टार्टअप करना चाहता है इच्छा है किसी के मन में? यस प्लीज खड़े होइए सर। योर गुड नेम प्लीज? नितांश। ओके मेरा क्या आइडिया है आपका? गुड। एनी अदर? इतने बड़े हॉल में आपके शहर में एक स्टार्टअप है, मैं नाम नहीं लूंगा, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, जाके गूगल करिएगा। ही इज जस्ट 32 ईयर ओल्ड, 32 ईयर ओल्ड, और 23 साल की एज में उसने अपने आइडिया को कन्वर्ट करने के बाद 24 में उसने अपनी पहली गाड़ी जो है वो मर्सिडीज सी क्लास की, और अभी उसकी जो रिसेंट गाड़ी जो है वो उसने जैगुआर लैंड रोवर वो ली। तो कुछ बढ़ते नहीं अंदर से कि नहीं अभी तो पापा की गाड़ी में मम्मी की गाड़ी में सैर कर रहे हैं, अगर हम अपना बिजनेस करेंगे। एक तो वो है जो अपना पिता पुत्री बिजनेस चल रहा है, लेकिन अगर ये एक अपना स्टार्टअप करना है तो कैसे इसको आगे लेके जाना है। सो आई कैन श्योर यू गाइस, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो हेल्प इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल बॉडीज हैं वो स्टार्टअप्स के लिए कर रही हैं, या जो फैसिलिटीज अवेलेबल है वो ना तो आने वाले टाइम पे इससे ज्यादा, क्योंकि धीरे धीरे ये कम हो जाएंगे, लोग एक्सेलरेटर्स की तरफ चले जाएंगे ना। तो अभी ये फेज मैं इसको एंडोर्स करने के लिए एक टर्म यूज करता हूँ, पंजाबी समझते हैं आप लोग? पंजाबी है ना? जो दामाद होते हैं उनकी केयर कैसे होती है नई नई शादी के बाद घर में? पंजाबी कहते जवाइयां की सेवा किवें हुंदी है ना? पूरा घर धोता जाता है, 4-5 तरह के पकवान, नवा बैड चादर, और जे पिंड का कोई प्राहुणा होवे तो पिलो कवर फलाना टिकाना, और प्राहुणे वास्ते चप्पल भी नवी आई हुंदी है ना? सो जिवें पंजाबी जी कहते कि जवाइयां का मान सत्मान और ख्याल रखा जाता है ना, इसी तरीके नाल वर्तमान समय दे विच जेडे नवे आइडिया जो स्टार्टअप कंपनी जो है उनका ख्याल रखा जाए। आप मांगो से ही अपने मुंह से क्या चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ से कॉलेज की रेपुटेशन ऑलरेडी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है, राइट? लेकिन कल को यहाँ के इंक्यूबेटर से एक कोई स्टार्टअप ऐसा निकल आया जिसने 2 साल की एस्टेब्लिशमेंट के बाद जो है वो 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर ले लिया, तो आपकी मैनेजमेंट उसको ज्यादा सम्मानित करेगी, आपने चाहे 102% नंबर लिया, क्योंकि बस नाम ही उसका। So wonderful facilities are there. This is the right time. If you have a good idea, must pitch to your incubator. एक बार फेल होता है कोई बात नहीं, दूसरी बार फेल होता है कोई बात नहीं, तीसरी बार वो और पक्की होके आएगा, बड़ा मैच्योर होके आएगा। दिस इज माय। कोई सवाल? थैंक यू। Does anybody have interest to ask about the startup or about your ideas? Yes. Otherwise, these are details, my contact details, mail ID, then contact number. You can write down, and I will be happy to answer your queries. क्योंकि कई बार हॉल में हम लोग ना शर्माते हैं, पूछते नहीं कि अच्छा मैंने ये पूछ लिया। Present their ideas to us also, we can forward it to you. Yes, yes. I am a part of this
can just. I am also part of your this innovation council. I will also be happy to sit as expert to evaluate that idea. And नए जो जब ये इंक्यूबेशन स्पेस जब आया है तो हम लोगों को प्रमोट करना है, राइट? आपका आइडिया अगर 15, 20, 25 पैसे भी है तो हम उसको 35 पैसे करेंगे, राइट? लेकिन इसके साथ साथ आपका इंटरेस्ट जरूर वॉच करें कि आपका इंटरेस्ट क्या है, राइट? और इसमें एक चीज जो मैं आपको बता दूं, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ टीम। दो अच्छी सहेलियां हैं, दो अच्छे दोस्त हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छी स्टार्टअप टीम में कन्वर्ट हो। एक का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा, दूसरे का नहीं होगा। तो बिजनेस में लाइक माइंडेड और वाइट माइंडेड लोगों का होना, टीम का होना जरूरी। With these words, I once again thank ma'am Vikram ji and for your patience hearing. और अच्छा लगा मुझे आपसे उनके, और सबसे बड़ी बात है अच्छा लगा कि एक यंग मैन है यहाँ पर जो अपना बिजनेस करना चाहता है, अपना स्टार्टअप करना चाहता है। मैं आप लोगों को भी कहूँगा, बाकी लोगों तक भी आप अपना ये हमारा मैसेज जो है वो पहुंचाएं, क्योंकि जैसे ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो जाती है और ये लाइब्रेरी आपने देखी होगी आपकी, विक्रम जी वही स्पेस ही है। सबको प्राइस किया हुआ है, मतलब we will tell them exclusively then. We will exclusively them, तो बहुत जल्दी ही आपको जो है बड़े अच्छे बैनर्स और स्टैंडीज यहाँ मिलेंगी। अगर आपका कोई आइडिया है, यहाँ अप्लाई करिए, इस जगह पे आइए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, वो जो इंक्यूबेटर स्पेस होगी वो इस कैंपस की एक्सक्लूसिवली एक बड़ी खूबसूरत स्पेस, आपको बैठ के वहां मजा आए। एंड फर्स्ट स्टेज में तो हम उसको लेट आवर्स तक खोलना पसंद करेंगे, एंड उसके बाद जो होस्टलर्स हैं उनके लिए इसको 24/7/365 भी करेंगे, क्योंकि जो IIT NIT पैटर्न जो है वो चलता है। बच्चे जाते हैं रात को 8, साढ़े 8 बजे अपना खाना खा के सो जाते हैं, 12, साढ़े 12 बजे उठते हैं, उसके बाद फिर अपने आइडिया पे काम करते हैं, चाहे वो वर्कशॉप है, चाहे वो कंप्यूटेशनल लैब है, चाहे वो लैब है, चाहे वो कंप्यूटर लैब है, उसके ऊपर अपना काम करते हैं। सुबह 4 बजे जो है वो सो जाते हैं। एंड मैंने विक्रम जी को पिछली बार रिक्वेस्ट की थी, आई विल आल्सो रिक्वेस्ट के आप डालिएगा योबोशु करके, योबोशु। जितनी लड़कियां यहाँ बैठी हैं, आप ही की जितनी लड़की है, शिवांशी वर्मा, शी इज अ ग्रेजुएट एंड मैकेनिकल इंजीनियर। लड़की, पहले तो बात लड़की, डिग्री की मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बहुत दूर का सवाल, लड़कियां मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाती नहीं है, राइट? एक तो लड़की डिग्री की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, राइट, गूगल की जॉब छोड़ दी और अपना स्टार्टअप कर रही है इसमें हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन। और अभी उसको 6 महीने पहले ही उसकी जो IIT रोपड़ के बाद जो फर्स्ट राउंड फंडिंग है 2 करोड़, नाउ शी इज हैविंग हर इंडिपेंडेंट ऑफिस इन बेस्टेक स्क्वायर मोहाली में। एंड बहुत जल्दी वो अपनी बड़ी सुंदर सी गाड़ी जो है वो लेने वाली है। एंड ऐसे जब बच्चों को जो आप जैसी एज के ही जो दिखते हैं, तो फिर होता कि हाँ हम भी जो है इस स्टार्टअप एरिना में जो एंटरप्रेन्योरशिप जो जर्नी है उसमें अपने आप को दिखाएं, राइट? थैंक यू वेरी मच। Please give a huge round of applause for sir. For your visionary talks and sharing the excellent experiences with us. We are fortunate enough to listen from you, and especially the practical examples you shared with us of the successful entrepreneurs is really means a lot to us. Now I request Dr. Madhu Sharma to formally give thanks to our guests. Well, this is one of the best duties assigned to me, the sweetest one, to express our gratitude to our speakers. I believe this morning was dedicated to all the information and motivation regarding becoming the innovators.
Many of you must have been liking it. Many of you must have been expanding your thought process for the future. I understand when you are at an undergrad level, it's kind of a little too early to think in those terms. But as we say, we have to nurture the seed at the right time so that it takes the right shape of a nice plant and a tree and fruit bearing project at a later stage. However, cutting it short, I would like to thank Dr. Sharma to be here with us in spite of his not very good health, as he expressed in the beginning. And I'm extremely grateful to the organizing team to have given this special opportunity to the students, which will go a long way in molding their ideas in the future and taking decisions about their careers in a big way. And I congratulate and thank all the participants who are sitting here today, enjoying this kind of facility being offered you with lots of patience. I understand human attention span is not as long as you have been made to sit here, but one round of applause for all of you. Thank you, everyone. Thank you so much, and all the best for the future endeavors. Thank you everyone. Thank you for the patient user. Thank you for the ma'am for sparing your time and grace of visiting your presence, ma'am. Thank you everyone. And a special thanks to our technical team, Mr. Keshu and Mr. Pradeep, who give technical assistance throughout this session. Thank you everyone. Have a good day. 1 मिनट लूंगा। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का डिसीजन होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा दिल पे भारी पत्थर रख के करना पड़ता है। और मुझे इसको लेने में 35 साल लगे। My last job was as a director. अच्छी भली 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह मिल रही थी, गाड़ी भी मिल रही थी। अभी भी एक यूनिवर्सिटी से जो है वो रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए ऑफर है, लेकिन अब मन किया कि नहीं, अब अपना ही काम कर। So I have started my own consultancy in Chandigarh and entrepreneur बन गए। मुश्किल डिसीजन था, मुझे 2-3 महीने लगे, आप लोगों को भी लगेंगे, क्योंकि एक होता है कि रेगुलर पढ़ाई है, उसके बाद जॉब मिल जाएगी, नहीं लड़कियों को तो ज्यादा ठीक है, शादी हो जाएगी, लड़कों को क्या है कि ठीक है चलो जॉब मिल जाएगी, लड़के भी चलो शादी के माँ बाप कहते हैं हाँ शादी तो हो जाएगी। बट अगर अपने सपनों को परवाज देनी है, अगर अपने सपनों को पूरा करना है, राइट, वो सपने जो आपकी नॉर्मल बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, पीएचडी करके तो नहीं आप कर सकते। टेक ए डिसीजन, एक बार कड़वा घूंट भर, ठीक है। थैंक यू। One more announcement, please, I request to all the faculty members and some of the students for a group photograph.